बीच में बात G7 की भी कर लेते हैं। पीएम मोदी ने बुधवार सुबह कनाडा के कैनास्किस में आयोजित G7 समिट में जो है नेक्स्ट सेशन के रूप में गेस्ट नेशन के रूप में हिस्सा लिया और कनाडा में मार्क कार्नी के साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट मुलाकात, क्योंकि ट्रूडो के साथ संबंध बहुत खराब हो गए थे और कार्नी के साथ मुलाकात बहुत इंपॉर्टेंट थी। राजीव, बिल्कुल ये मुलाकात बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि साझा वक्तव्य में भी प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और कनाडा के संबंध काफी महत्वपूर्ण है और ये भी कहा कि इससे पहले मोदी ने समिट में ऑल वर्ल्ड लीडर्स से मुलाकात की थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बैठक इसलिए भी है क्योंकि कनाडा के साथ हमारे जो संबंध रहे हैं उसको और कैसे आप रिवाइव कर सकते हैं, कैसे नए आयाम पर ले जा सकते हैं, इन सभी चीजों को लेकर दोनों नेताओं के बीच में बड़ी बातचीत हुई है। इंपॉर्टेंट ये भी खालिस्तान को लेकर भारत ने क्या बातचीत की होगी, उस पर सबकी निगाहें रहेंगी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रिएक्शन आपको सुनाते हैं, उन्होंने कहा क्या कुछ। आज G7 के अंदर G20 में भारत ने जो मजबूत नींव रखी है उसको एक प्रकार से नए स्वरूप में G7 में उसके एग्जीक्यूशन की दिशा में ले जाने में एक बहुत बड़ा अवसर है और भारत इस अवसर का उपयोग ग्लोबल गुड के लिए करने के लिए हमेशा इच्छुक रहा है, आगे भी इच्छुक रहेगा। भारत और कनाडा के संबंध अनेक प्रकार से बहुत ही महत्वपूर्ण है। कनाडा की अनेक कंपनियों का भारत में निवेश है। भारत के लोगों का भी कनाडा की धरती पर बहुत बड़ा निवेश है। लोकतांत्रिक मूल्यों को समर्पित कनाडा और भारत मिलकर के लोकतंत्र को मजबूत करना होगा, मानवता को मजबूत करना होगा, हमारे रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर करके मानव जात के कल्याण के काम में कैसे ला सकते हैं, उस दिशा में हम प्रयास करते रहेंगे। और वहीं देखिए, कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया। इसके बाद दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों के बीच द्विपक्षीय मुलाकात हुई। मुलाकात को लेकर आज तक संवाददाता गौरव सावंत ने कनाडा के प्रधानमंत्री से सवाल किया। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। Good evening, Prime Minister. My name is Gaurav Sawant. I work for India Today in Delhi. Your meeting with Prime Minister Narendra Modi, how would you describe that? And what are concrete steps that you and the Prime Minister of India discussed to take this relationship forward, that it reaches its true potential, sir? Well, I think several things, if I may say. I would say the meeting, the fact of the meeting. Let me say a few things. First, just in terms of Prime Minister Modi's attendance at the G7. Prime Minister Modi has attended every G7 since 2018. That is a reflection of the size of the Indian economy, the dynamism of the Indian economy, Indian technology, the leadership position India plays in a host of venues from G20 and beyond. So as chair of the G7, hosting the Prime Minister in that context is entirely natural, entirely consistent. I fully expect the Prime Minister of India will be in attendance at the G7 next year, for example, in France. First thing. Secondly, in terms of the bilateral relationship, which is your question, I think the meeting today was important, but I would describe it as foundational, as a necessary first step, an exchange of views, frank, open exchange of views around law enforcement, transnational repression as two examples, an agreement to provide the necessary foundations to begin to rebuild a relationship based on mutual respect, sovereignty, trust. And that begins with what was agreed, you asked for concrete, which is that we will move to appoint high commissioners again. And let me just finish by putting that in context, which is there are very deep ties of people and businesses between Canada and India. It's well known. It's part of your point about where the relationship could go. And they are not served at present by consular services, in effect, certainly by high commissioners. And it's necessary to have that level of service as a basis on which to build out, again, in the context of respect for sovereignty, and to begin to realize the potential of the relationship, and we will, we're both committed to work towards that. But there's a lot of work that will need to be done.
तो कनाडा के पीएम का आपने बयान सुना। हमारे संवाददाता प्रणय लगातार हमारे साथ बने हुए। प्रणय, भारत और कनाडा के रिश्ते आगे कैसे रहेंगे, ये इस बात पर भी निर्भर करेगा कि कनाडा भारत विरोधी गतिविधियों को रोके, खालिस्तानी आतंकवादियों को पालने पोसने से रोके। इस पर मार्क कार्नी का या कनाडा का स्टैंड क्या रहने वाला है? देखिए, मार्क कार्नी की तरफ से अगर आप देखें तो दो चीजें स्पष्ट नजर आती हैं। पहली बात यह कि भारत के साथ संबंधों का सुधार कनाडा भी चाहता है, कनाडा का राजनीतिक नेतृत्व भी चाहता है। दूसरी चीज ये है कि जहां तक भारत और कनाडा के साथ संबंधों का सवाल है, उसके अंदर कनाडा के सामने भी ये स्पष्ट है कि भारत के साथ में जो संवेदनशीलता है, जो म्यूचुअल रिस्पेक्ट ऑफ सॉवरेनिटी है, उसका ध्यान रखना होगा, कनाडा को भी रखना होगा। दूसरी चीज तीसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है राजीव कि ये मामला केवल भारत से जुड़ा हुआ नहीं है कि भारत के खिलाफ यदि अलगाववादी ताकतों को और इस तरीके की चरमपंथी ताकतों को कनाडा अपने आप पनाह देता है, तो कनाडा के सामने भी इसके उदाहरण और नमूने हैं बीते कुछ समय के कि किस तरीके से ये लोग खुद कनाडा की जो कानून व्यवस्था है उसके लिए संकट और मुसीबत बन सकते हैं। और भारत ने इसको लेकर पहले भी कनाडा को और तमाम जो दूसरे देश हैं जो इस तरीके की ताकतों को अपने यहाँ पर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर जगह देते हैं, उनको आगाह करते हुए चिट्ठियां लिखी थी। कहा था कि ये केवल भारत और कनाडा के रिश्तों को ही खराब नहीं कर रहा है, बल्कि ये आपके मुल्क में भी जो है कानून व्यवस्था की संकट या उसकी जो मुसीबत है वो खड़ी कर रहा है। लेकिन कनाडा के प्रधानमंत्री ने जो कुछ कहा उसका आकलन अब वॉक द टॉक के जरिए होगा, यानी कनाडा जो कुछ कह रहा है क्या वो वाकई में जमीन पर उसे उतारना चाहता है। यहां पर इस बात को नहीं भूलना चाहिए सुमित और राजीव कि इस पूरे मामले के अंदर कनाडा को भारत के साथ में रिश्ते खराब करके खोने के कितने सबब हैं ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। करीब $8 बिलियन जो है वो भारतीय छात्र बिल्कुल बने। यही तो बात है कि जो कनाडा कह रहा है क्या जमीन पर उसको उतारेगा, यही भी देखना होगा, क्योंकि एग्जीक्यूशन एक बड़ा आप कह सकते हैं बिंदु है जिसको बहुत गौर करना होगा। चलिए बने, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।